और आप अब चेयर करें। इसके साथ ही हमारे पास 4 प्रेजेंटर मौजूद हैं। एक एक करके वे अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और आपसे निवेदन है कि कृपया जो भी उत्तम शोध पत्र हो उसे आप बेस्ट पेपर की कैटेगरी में डालकर अवार्ड से सम्मानित करें। तो सबसे पहला पेपर जो अब मैं आपके सम्मुख आ ही गया है, ये अनीसा फारूक की है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अनीसा जी, ओवर टू यू। कृपया आए और अपना मौलिक रिसर्च पेपर हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Anisa Farouk, research scholar from University of Kashmir. My topic of presentation is Cultural Rituals of Kashmiri Muslims, a reflection of death customs and practices. Next slide, please. When we talk about culture, culture is it's a set of customs, traditions, and values of a community, or we can say society. It's a way of life of a group of people who share beliefs, values that are generally accepted. So it's a some total of learned behavior of a group of people that are generally considered to be a tradition of a people that are transmitted from generation to generation. So every culture has its own set of beliefs that govern how the world function and how the people have a set of role in the world. The society of common beliefs, they share same religion, which in turn shapes the culture. So each culture has its own beliefs about the meaning and purpose of life and life after death. Next slide. Cultural rituals that are normal to one culture may seem strange to another. For example, death becomes unbearable to those who don't believe life after death. Beliefs about the meaning of a death help people to make the sense of it and bear the loss of a loved ones. Next slide. However, when confronted with a life threatening illness or subsequent death of a loved ones, customs, beliefs, rituals, and religion practices may reclaim an important role. Rituals help people to express their sorrow and grief and to cope with the mystery of a death. They provide a sense of normalcy and regularity after the chaos and the confusion created by the death. Next slide. So, customs and rituals they direct what ceremonies are performed before and after death, what is the role of a people during the bereavement, how to cleanse and dress the person's body. Next slide. Who handles the body, whether the grief is expressed loudly or privately, for how many days the grief can be expressed, how to dress and behave during the grief. In addition, people with different religion cannot have same customs and rituals as there are many paths to be followed. Next slide. At a young age, Kashmiri Muslims they learn to cope with death and dying. To make the death and dying more meaningful and integral part of life, they employ beliefs, customs, religion teaching, and religion practices. Moreover, the most frequented quote verse of the Quran is Inna lillahi wa inna ilahi rajoon. Translation is Surely we belong to Allah and to Him we shall return. This quote is usually used whenever one faces tragic situation, illness, loss, or grief. Kashmiri Muslims they believe in predestination, which gives them patience, calmness, and acceptance in his circumstances to bear loss, grief, tragedy in life at ease. Next slide. They believe that all good and bad is from Allah. Thus, that is an important part of the essentials that a Muslims must believe in, which is called Iman Mufassal. So, the denial of the death is considered to be a sign of weak Iman in Allah. In fact, the accepting and humble attitude in time of death makes the grave work possible. Next slide. Funeral tradition. When death occurs, there remains a last bath. It takes up to an hour to wash and wrap the body in a plain white cloth with no apparent stitches. Usually, two people are needed to carry out this procedure by wearing gloves. However, private parts are covered with a sheet and are never exposed during the wash. Next slide. In fact, the face of a deceased is not allowed to expose after shrouding. These rules are strictly adhered among Kashmiri Muslims.
Usually, shoveling is done either by a professional person or a close relative of a deceased to receive the body. After washing, shrouding, and shoveling, people are called on a loudspeaker to attend the burial. In Kashmiri culture, whenever one hears the death, whether it's neighbor, a friend, or a relative, she must present at his her condolence. At a social and religion level, one cannot make any excuse for not presenting at condolence. Funeral ceremonies must be attended by men and older children. They carry the coffin to the mosque where the imam holds the funeral prayer. After the prayer for the soul of a dead and burial is over, mourner may gather at the home of an immediate family to support them in their grief. While women are not allowed to attend the funeral prayer, they keep company to the bereaved family at their home. Next slide. Traditional meal. Usually, lunch is not prepared for 4 days. Only tea and dinner are prepared by the neighbors, friends, or relative and is served to anyone present. No one refuses to taste the traditional meal, as it is believed that eating from this particular meal purifies the soul of a deceased. Next slide. Mourning period. In Kashmiri Muslim tradition, one is not allowed to show sorrow and grief for more than 4 days, neither in daily aspects nor in social appearances. However, widows are conventionally observed a longer period of mourning. They must not be shown up in a public and are not allowed to wear makeup and bright color clothes for 4 months and 10 days. Next slide. Traditional visits. The neighbors and the friends and the relatives, they provide a great deal of assistance for the bereaved. The feeling of isolation and loneliness is less common due to the custom of physical proximity. After the 4 days of a mourning period or process, the neighbors, friends, and relatives they come to visit the bereaved family on the first day of the week after the burial. That's the Monday, the first Friday. Next slide. The 15th day of the deceased, the 40th day, the first Shabi Barat, the first Eid, and the first death anniversary. The family of a newly bereaved shares the memory with the love and patience on these days. These traditional visits help the bereaved family to resolve their grief faster. Next slide. Being together in time of pain and sorrow and touching one's hand has a great value at both religious and cultural level. Therefore, going through death and dying with neighbors, friends, and relatives around not only elevates the pain of adversity but also comforts those around as well. Nowen in 1974, on quote, the friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, who can tolerate not knowing, not curing, not healing, and face with us the reality of powerlessness, that's the friend who cares. Next slide. Conclusion. In Kashmiri culture, people are together in times of difficulties, sorrow, or loss. As it is hard to accept the loss of loved ones, the cultural practice and religion teachings they prepare them to accept the death as an integral part of life. Thus, they re-establish emotional synchrony and a sense of equilibrium for the bereaved. Therefore, the beliefs and ritual provides a sense of stability and security by providing meaning to the death or loss. These traditional practices they relieve the agony of loss faster. Thank you. Thank you, Anita, for briefing your paper during the timeline. And now I would like to request our chair, Dr. Satyam Singh. Sir, kindly make your comments. And is there any question if any attendees or any panelists would like to ask to the presenter, if they can ask them? नहीं, मुझे पेपर अच्छा लगा और इसमें जो जिस रिचुअल्स के बारे में बताया गया, मैं कई चीज़ों को नहीं जानता था, मुझे सीखने को मिला। ये बातें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत साइको एनालिसिस से जैसे सुधीर कक्कर को थोड़ा सा रेफर किया जाता, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है
रिचुअल्स पे, ये खास करके मुस्लिम महिलाओं पे था और कश्मीर पे एकदम ये था, लेकिन इसको थोड़ा सा इन चीजों को यूनिवर्सलाइज किया जाना चाहिए। जब आप एक शोध पत्र कर रहे हैं तो कई दूसरे जगहों पे भी ये जो डेथ को ओवरकम करने के लिए रिचुअल्स हैं कई जगह पे, इस पर साइको एनालिसिस के हिंदू परंपरा में है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा और इस झगड़े को भी नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन इन रिचुअल्स का जो एक ओवरकम करने का जो चीज है वो सुधीर कक्कर ने किया और कई साइको एनालिस्ट ने किया, तो ये चीजें थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। बढ़िया पेपर है वैसे, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उसको रेफर, कुछ लोगों को रेफर किया जाना चाहिए। Okay. Thank you for the comment, sir. Now the second paper presenter we have here is Mr. Tarshisius Kerketa. I would like to request him to kindly help us to pronounce his name, introduce him a bit, and kindly present his paper before us and to our chair professor. Mr. Tarshisius, are you there? मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो पेपर प्रेजेंटर हैं उनका एक बार वो नाम मैं देख लेता हूँ। जी टार्सिशियस केरकेटा जी हैं। थोड़ा टफ है सर उच्चारण करना नाम का, इसीलिए मैं उनसे खुद ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आए और अपना छोटा सा एक परिचय देकर अपना पेपर का वाचन करें। Sir, I'm afraid that he is not there in the session. Okay, so we are moving towards the move next presenter. Yeah. Yeah. So we have Vivek Nema ji. Vivek Nema ji, are you there? Yes, sir. Yes, kindly go on. Okay. Thank you so much, sir, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, और थैंक यू सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, RNTU एंड सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। सर, मेरा जो टॉपिक है वो कल्चर और कम्युनिकेशन को लेकर है कि कल्चर का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कम्युनिकेशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कल्चर के ऊपर। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मास कम्युनिकेशन को जो हम बात करते हैं, सत्यम सर ने भी बहुत अच्छे से अभी वेस्टर्नाइजेशन को बताया, तो इसी को मैं आगे ले जाऊंगा। और सबसे पहले सर मैं बात करूंगा इंटर कल्चर की। जैसे सर भारत एक बहुत बड़ा देश है और तरह तरह की विविधताएं हैं, अलग अलग सबके कल्चर हैं। तो सर अब जो है कि डिजिटल होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, और लोग माइग्रेट करते हैं यहाँ से वहाँ, तो अब हम एक दूसरे को कल्चर को बेहतर से समझ पा रहे हैं। हम एक दूसरे का कल्चर बेहतर समझ पा रहे हैं, उनको खुद हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना हमारे कल्चर को स्ट्रांग होना और इंटर कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। सर मैं बहुत ज़्यादा इसको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, और कल्चर से हम सभी वाकिफ हैं और कम्युनिकेशन से भी सभी वाकिफ हैं, मीडिया से भी सभी रूबरू हैं। तो मैं सीधा इम्पैक्ट पे आता हूँ कि हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, इन सभी का हमारे कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम एक जनरेशन का गैप देख सकते हैं, या कहें तो एक इम्पैक्ट देख सकते हैं जो चेंज है। जैसे हमारी जो शुरुआत थी, मैं एक दिनचर्या के हिसाब से मैं इस पेपर को प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में, जो सभी अटेंडीज हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो सर जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले जो स्टेटस का डिवीजन है, पहले हम देखते थे कि ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, इस तरह का डिवीजन होता था सोसाइटी में। लेकिन सर अब जो डिवीजन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, या हम कहें तो लोग अब देखते हैं कि आपके पास कितनी लग्जीरियस चीजें हैं। अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कुछ लग्जीरियस चीजें होनी चाहिए, जैसे आपका बेडरूम होना, प्रॉपर बेडरूम होना चाहिए, सबका अलग अलग रूम होना चाहिए, आपकी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल पर भी आपको फ्रूट्स रखे होने चाहिए, एक बाउल में, बड़े से बाउल में, चम्मच का स्टैंड होना चाहिए। तो ये चीजें कभी इंडियन कल्चर में नहीं थी, ये हमने शायद वेस्टर्न से अडॉप्ट की हैं, और इस चीज को बढ़ावा दिया है कहीं ना कहीं टेलीविजन, डेयरी सोप्स और इस तरह के सीरियल्स ने। मैं कहूँगा इनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि जो स्टेटस का जो डिवीजन किया है इन्होंने, कि अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास एक लग्जीरियस कार होनी चाहिए, अगर आपके चलने का स्टाइल अलग होगा, आपके बैठने का स्टाइल अलग होगा, आप लोगों से जो बात करेंगे वो अलग होगा, आपकी पार्टीज अलग होंगी, इस तरह से। और जैसे हम देखते हैं कि कपड़ों की अगर हम बात करें तो कपड़ों में कलर कोड का बड़ा एक चलन हमने देखा है इस बीच में,
कि अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन है आपके घर में, तो कलर कोड का बड़ा प्रचलन है कि अगर सब येलो थीम रखी हुई तो सब येलो थीम पहनेंगे। पहले हम सिर्फ अपने नीड के हिसाब से कपड़े पहनते थे, या जो फंक्शन है एक अकॉर्डिंगली हम उसको ड्रेस करते थे कि एवरेज ड्रेस इनफ है। लेकिन अब जो है वो नीड क्रिएट की जा रही है कि आपको एक थीम के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये इतना जो चेंज हुआ है, इसके पीछे की जो वजह है उसको जानना बहुत जरूरी है। सर कम्युनिकेशन में मैंने एक थ्योरी पढ़ी है, जैसे बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेशन ओरिएंटेड है, और जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ओरिएंटेड है, मतलब हमें चीजों को एक्सप्रेस करना है। पहले हम जो करते थे वो खुद के लिए करते थे, अपने पहनने के लिए, लेकिन आज हम जो करते हैं वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि हमारी जो इमेज है वो सामने वाले के अंदर कैसी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे इस कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम जिस तरह से पहनते हैं, जिस तरह से चलते हैं, हम एक दिखावटी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज, जैसे पहले साबुन साबुन हुआ करता था, लेकिन अब साबुन में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। क्या जरूरत हुई? बायोलॉजिकल तौर पे तो हमारी बॉडी वही है, हमें कोई जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो रहे हैं। बायोलॉजिकल तो हमारी बॉडी वही है। तो पहले साबुन साबुन हुआ करता था, उसमें ही बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं, कहीं लेमन का है, फिर ये फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप के, उसके बाद फिर शैम्पूज में बहुत सारी वैरायटीज आई। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बाथरूम का एक जो कहना चाहिए लुक है या उसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत डाइवर्स हो गई है, सबको अलग अलग चीजें चाहिए, सबकी अलग अलग पसंद है। इस कॉन्सेप्ट को मार्केट ने कहीं ना कहीं जन्म दिया है, इस चीज को मार्केट ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। एडवर्टाइजिंग ने आपके अंदर एक नीड क्रिएट की है कि हम, यस आपको वो चीज जरूरत है, अगर आपको नहीं है तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट से कहीं ना कहीं उसके ऐसे फायदे दिखाएंगे कि आपको उस चीज की जरूरत लगेगी। और सर एक जो नया कॉन्सेप्ट है इस बीच में, वीकेंड, मैं समझता हूँ ये बड़ा कंट्रोडिक्टरी एक कॉन्सेप्ट है, वीकेंड या हॉलीडेज कहें तो। क्योंकि पहले वीकेंड या हॉलीडेज का मतलब होता था कि आप 6 दिन काम करते हैं और एक दिन आराम करते हैं, वो आराम करने के लिए दिन होता था। लेकिन आज वीकेंड या सैटरडे संडे जो हम मनाते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट बड़ा तेजी से बदला है ये कॉन्सेप्ट। जैसे हम देखते हैं कि वीकेंड में अब जो होता है मूवी देखने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो ये चीजें वीकेंड में बहुत तेज प्रचलन में है। तो वीकेंड का कल्चर भी चेंज हो रहा है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो पहले हम घूमते थे और फिर उसके बाद एक आध फोटो खिंचा लेते थे, लेकिन अब हम पहले फोटो खिंचाते हैं, और शायद घूमना तो बहुत कम ही हो गया होगा, किसी जगह पर अगर हम जाते हैं तो पहले फोटो खिंचाते हैं, और पेन से कहीं ना कहीं हम, पेन या डायरी से कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे याद है सर, मैं एक बार जब घूमने गया था बचपन में, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक डायरी रखाई थी कि जहां भी घूमे आप तो उसके जो नोट्स हैं वो जरूर लेके आए कि आपने क्या क्या देखा है। और मैंने उसके पूरा लिखा था कि मैंने इतनी जगह गया हूँ, ये देखा, जो भी है। तो अब वो कल्चर कहीं ना कहीं चेंज होके स्टोरीज पे शिफ्ट हो गया है। जैसे 24 आवर्स की जो इंस्टा स्टोरी है या व्हाट्सएप स्टोरी है, उस पर शिफ्ट हो गया है। तो अब हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने बात की थी एक्सप्रेशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हमारा, अब हम जो एक्सप्रेस करते हैं वही कल्चर बनता जा रहा है हमारा। सर इस वीकेंड कल्चर को मैं फूड कल्चर के साथ एक मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि फूड कल्चर बड़ा चेंज हो रहा है। अब हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारा मीडिया डिसाइड कर रहा है। जैसे कि टेलीविजन आने के बाद ये एक बड़ा बदलाव रहा है कि फैमिली को जोड़ने का एक अच्छा काम किया है इन्होंने, कि अगर कोई 8:30 बजे प्रोग्राम आना है, 9 बजे कोई प्रोग्राम आना है, तो फैमिली साथ बैठकर देखती है। तो एक वो जो गैप था फैमिली के बीच में, बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच एक जो गैप बढ़ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हुआ है। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट हम डिजिटल के लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं जो जोमेटो और स्विगी जो एप्स हैं, फूड डिलीवरी के जो एप्स हैं, वो आपके अंदर एक नीड क्रिएट करते हैं। अब पहले क्या होता था कि खाना हम तब खाते थे जब हमें भूख लगती थी या कुछ खाने की इच्छा हो। लेकिन अब आप एक इनकी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी से ये लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपको आज पिज्जा खाना है, आपको आज बर्गर खाना है। आपके अंदर वो भूख और वो इच्छा पैदा की जाती है। अब आप ये नहीं देखते कि मुझे इच्छा है या नहीं है, अब आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जोमेटो पे ऑफ मिल रहा है तो हम तब खाएंगे, या कुछ मंगा लेते हैं, स्विगी पे ऑफ मिल रहा है तो 60% 50% जो भी है। तो ये बड़ा बदलाव आ रहा है फूड कल्चर में। और इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं जो नीड है उसको भी चेंज किया जा रहा है।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, फिल्म्स का, सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज सर, इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो है सेलिब्रेशन की। जैसे हम कोई भी फंक्शन हो, अब मैं केक का कॉन्सेप्ट बस मतलब समझ नहीं पाया हूँ इस चीज को कि केक का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, एंगेजमेंट है, कुछ भी है, हम केक कटिंग करते हैं। और मुझे नहीं पता, एक मैंने बड़ा इसको ढूंढा है इस रिसर्च पेपर को तैयार करते हुए वक्त कि केक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हम 3 अलग अलग प्रोग्राम से, अगर एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी है, कितने भी तरह के प्रोग्राम से हम उसको सिर्फ एक चीज से डिनोट करते हैं, वो है केक। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेलिब्रेशन का तरीका है, फैमिली गैदरिंग है, और तरह तरह की जो हम जो रिचुअल्स करते हैं उनमें बड़ा फर्क आया है। मैंने एक स्पेशल रेफरेंस इसमें इंडियन फेस्टिवल्स का लिया था, जो भारत के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनका एक रेफरेंस लिया था इस चीज को समझाने के लिए कि हम जो त्योहार हैं, भारत के मेजर त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, नवरात्रि है, इसमें बड़ा फर्क देखने को मिला है। जैसे मैंने काफी रिसर्च इस बात पे की थी, और मैं कभी सोचता भी उस बारे में कि ये पिचकारी का होली में क्या कॉन्सेप्ट रहा है, मतलब कैसे इसका इजाद हुआ, पिचकारी कैसे आई, केमिकल कलर्स बनने लगे और नेचुरल से हम आर्टिफिशियल की तरफ बढ़े, पिचकारी है, और जो मास्क वगैरह बच्चे लगाते हैं, तो ये चीजें कहाँ से आई? ये हमारे कल्चर का हिस्सा कभी नहीं थी। दिवाली में हम देखते हैं कि जो पटाखे हैं और फुलझड़ी हैं, तरह तरह के हजारों में लोग बम खरीदते हैं, फोड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको सेलिब्रेट करने का तरीका कहाँ से आया, और कैसे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, मेनली जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, इस चीज को कैसे अडॉप्ट किया, इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, लास्ट वन। तो ये मैंने कुछ फोटोज यहाँ रखी हुई हैं, प्लेस की हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ड्स से ज्यादा फोटोज जो है, पिक्चर्स जो है, वो हमको बताती हैं कि क्या है। तो ये एक कुछ फोटोज हैं जो फेस्टिवल सेल्स की हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन हमारे जो देश में जो टॉप ब्रांड्स, टॉप कंपनीज हैं, जो उनकी कुछ तस्वीरें हैं, एड्स की तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमको नीड क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर वो चीज कल्टीवेट की जाती है, हमारे मतलब कल्टीवेट की जाती है इंसान के दिमाग के अंदर। अगर आपको अपना फेस्टिवल अच्छा बनाना है, अगर आपको अपना फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो आप हमारे से शॉपिंग कीजिए। आप कुछ ना कुछ लीजिए, आप गोल्ड की कोई चीज ले लीजिए, आप साड़ी ले लीजिए, आप पैंट शर्ट ले लीजिए, आप कुर्ता ले लीजिए, किसी पे ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरह से ये सेल निकालते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को ये चेंज कर रहे हैं। किसी फेस्टिवल में नए कपड़े पहनना एक अलग बात है, कपड़े की जरूरत होना अलग बात है, लेकिन अपने हिसाब से ना चलकर किसी और के हिसाब से चलना, ये अलग बात है। तो ये चेंज जो है वो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि लोग भागते हैं कि हम अगर नया मोबाइल लेना है तो हम दिवाली पे लेंगे, होली पे लेंगे, या न्यू ईयर पे लेंगे जब सेल आएगी। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम ना करके एक जो थर्ड पार्टी है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं कहूंगा कि कैडबरी ने इसको बड़ा अच्छा से पोर्ट्रे किया था, एडवर्टाइजिंग हम कैडबरी की बहुत ज्यादा देखते हैं कि उसने बहुत सारे फेस्टिवल्स को रिलेट किया है अपने साथ, जैसे रक्षाबंधन को, दिवाली को, और इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उसको रिलेट किया है, ताकि लोगों को, बहुत बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। तो हम किस तरह से दिवाली पहले मनाते थे, किस तरह से दिवाली अब मनाते हैं, उसमें बड़ा बदलाव आ गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने लिखे हुए थे कि लोगों से मिलना हमारा कम हो गया है, सोशलाइजेशन कम हो गया है। अब हम जो व्हाट्सएप पे विशेष भेजते हैं उसका एक अलग तरीका है, पहले जो जिस तरह से हम फेस्टिवल्स को मनाते थे उसका एक अलग तरीका है। जैसे होली में भी हम देखते हैं कि बड़ा एक अलग प्रचलन अभी कुछ सालों में मैंने खुद देखा है कि रिजॉर्ट वगैरह में होली की जो पार्टी होती है, डीजे पार्टी होती है, कोई ना कोई बड़ा डीजे आया हुआ होता है जो गाने गाते हैं, वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था होती है। 3,000 या 4,000 का कोई ये पैकेज होता है कि आपको इतने पैकेज में इतना सब मिल रहा है। उसमें तरह तरह की जो ड्रिंक्स होंगी, गुजिया होंगी, मिठाइयाँ, गाने, सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जो कि वेस्टर्न से ही मैं मानूंगा कि आया हुआ है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखी कि हम यहाँ से पैसा कैसे बना सकते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका था कि हम आपको होली का एक मतलब जो भी है पास दे रहे हैं, 3,000 रुपये का है, 4,000 रुपये का है, आपको वहाँ फुल फैसिलिटी आपको मिलेगी
तो इस तरह से आप होली मनाइए। तो ये एक बड़ा बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैं अपना बात को कंक्लूड करूंगा कि जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, और इससे बचने का एक खासा तरीका ये होगा कि मैं मानता हूँ कि मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया और जो एडवर्टाइजिंग हमें दिखाते हैं, हमें उसकी लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अंतर करते आना चाहिए। और खास करके टीनेजर्स और जो यूथ्स हैं, वो बहुत जल्दी, टीनेजर्स का माइंड बहुत जल्दी कल्टीवेट हो जाता है इस बारे में कि हमको जो दिखाया जा रहा है हम उसको सच मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टीनेजर्स और ऊपर के जो सारे लोग हैं, वर्ग है, सभी को मीडिया लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्चुअली में जो मीडिया दिखाता है, एक्चुअली में जो मार्केट दिखाता है, वो सच नहीं है। और वहां पे खर्च करने से ज्यादा, समय खर्च करना या पैसे खर्च करने से ज्यादा है अपने ऊपर ध्यान दें, अपने वैल्यूज, हमारे जो कल्चर, हमारे जो ट्रेडिशन है उसके ऊपर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे और इन चीजों से बच पाएंगे। मुझे नहीं पता ये चीजें कितनी गलत है कितनी सही है, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, और कुछ चीजें आपकी साइकी पे भी डिपेंड करती है कि आप किन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, किन चीजों को नहीं करते हैं। तो मीडिया लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन सब चीजों को हम सहेज सकते हैं, अपने कल्चर को सहेज सकते हैं, इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो थैंक यू। धन्यवाद विवेक जी। मेरे ख्याल से सत्यम सर आप इसके लिए उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं वेस्टर्नाइजेशन और डिवेस्टर्नाइजेशन की बात हो रही है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और बढ़िया पेपर लगा मुझे। लेकिन मैं अखिलेश, मैं ये तुमको तुम्हारे मार्फत से विवेक को बताऊंगा। विवेक, क्या जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो? यस सर, मैंने एमए अभी कंप्लीट किया है यहाँ हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से, मास कम्युनिकेशन में। हाँ, तो मैं कुछ मतलब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सलाह दूंगा तुमको कि मैं पूरी किताब नहीं कहूंगा। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, एक मार्शल मैकलुहान का नाम सुना होगा तुमने? यस सर। हाँ, जिसने क्वाइन किया है ग्लोबल विलेज शब्द को। हाँ, या जिसका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, मीडियम इज द मैसेज, माध्यम ही संदेश है ना? तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे रेफर कर दो तो बढ़िया पेपर होगा। और मैं एक और चीज, जो तुम बोल रहे हो ना कि छुट्टी मनाने जा रहे हैं और वीकेंड है, आराम नहीं कर पा रहे हैं। पुराने जमाने में लोग गर्मी छुट्टियों में नानी दादी के यहाँ घूमने जाते थे, यानी वो अपनी संस्कृति से जुड़ते थे और मतलब परंपरा से जुड़ते थे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और इन सब चीजों का प्रभाव है। मैं बस मतलब इसको दूसरे अर्थ में नहीं लेना। तो डलास स्मिथिए, इसका भी एक बार जिक्र करूंगा कि डलास स्मिथिए ने ऑडियंस इज वर्क एज ए वर्क, कमोडिटी वर्क। यानी ये जो दर्शक हो रहा है आज, या जो श्रोता हो रहा है, जैसे वो बोलता है कि वो उसको कमोडिटी बना दिया है। हम लोग जो छुट्टी मना रहे हैं या लीजर पीरियड जो व्यतीत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम उससे प्लेजर ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, हम दरअसल उसके उपभोक्ता बन रहे हैं और हम अपने कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा उसमें दे रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये जो लीजर है, ये जो आराम जिसको कह रहे हो या फिर छुट्टी है, जो कल्चर है, उसका भी वस्तुकरण कर दिया गया है। डलास स्मिथिए का काम बहुत अच्छा है। अगर तुम उसको कहीं इंटरनेट से या वो ऑडियंस एज ए कमोडिटी वाला लेख पढ़ सको, तो मुझे लगता है कि तुमको फायदा होगा और अच्छा इंटरेस्टिंग काम लगेगा तुमको। बाकी तो ठीक है। जी सर। सर कोई कमी रहेगा ही हो तो प्लीज। नहीं, ये मैंने कह दिया। हाँ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। आज के प्रथम सत्र में भी कहीं ना कम्युनिटी कंट्रोल ओवर कैपिटल कंट्रोल की बात की गई थी, और इसी के साथ हमारा सत्र भी शुरू हुआ था। और अब हम अगले वाचक को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि खुर्शीद अहमद जी हैं। खुर्शीद अहमद जी, अगर आप उपस्थित हो तो कृपया अपना पेपर प्रेजेंट करें। अन्यथा हमारे साथ टाशीचियस करकट्टा जी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर टाशीचियस करकट्टा, kindly introduce yourself and help us to name you and I'm sharing the presentation in just 1 minute. Yeah. Okay ma'am. So yes, we have Mr. Tashish Karkata with us.
Sir, I would welcome you and would request you to kindly introduce yourself in a very brief, because we have 10-minute limited for your paper presentation. Good evening to all of you. I am Tarsisius Keketa, research scholar, Department of English from Dr. C.V. Raman University, Bilaspur, Chhattisgarh. Go on. The topic is research paper topic is socio-political communication system of Indian tradition and novels of Orhan Pamuk as the bridge between East and the West. The socio-political word is used to describe the differences between the groups of people relating to their political beliefs, social class, socio-political systems, and problems involve a combination of social and political factors and socio-political issues such as ecology and human rights. Socio-political issues include poverty, illiteracy, caste system, gendered violence, communalism. Socio-political factors are government policies, political stability, corruption, foreign trade policy, tax policy, labor and environmental laws. Categories of political communication: radio, direct mail, email, internet, telephone, pamphlets, and flyers. Research methodology: the present research methods are analytical, illustrative, descriptive, and qualitative. It is based on the reference books, journals, magazines, newspapers, recorded interviews. Next page. Next. Orhan Pamuk writes in Turkish language. His novels are excellently translated into English language. The novels are also translated into more than 60 languages of the world. Pamuk has attracted the attention of a number of readers, writers, research scholars, and critics. His novels have been reviewed by a number of other renowned writers. Pamuk has given a number of interviews giving vent to his inner feelings about various issues to media, persons, and writers. Next page. Pamuk's main concern in his novels is Turkish society, religion, politics, and culture. All his novels depict Turkish society in general and Istanbul in particular. Turkish government runs on 3 levels: executive, judicial, and legislative. In religion, more than 99.80% of the population is Muslim. Most of them are Sunnis. As far as ethnicity is concerned, more than 70% people are from the Turkish and the rest from Kurdish and minorities. Brief history. The civilization of Turkish history began with the Hittites. The mighty warriors of Hittites captured Babylon and captured Baghdad and extended their kingdom. The period witnessed drastic changes all over the Middle East, and Islam was introduced as the main religious faith. Islam grew swiftly all over the central and eastern parts of Asia. Depiction of culture, westernization as negative identity. The problems like identity crisis, conflict of tradition and modernity, clash of the East and the West, depression and melancholy emerged in Turkey. These issues arising out of multiculturalism, finding prominence in the writings of Turkish writers. Next. 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 In other words, the sentiments for Europe oscillate between 2 extremes. On the one hand, the West is admired as the ideal or level of contemporary civilization, which is in the core of Republican ideology. On the other hand, resentment is nourished against the West as an insidious political enemy by white and black. I metaphorically refer to the colors, not to any race. Next. Bridging the
gap took place as part of the Kemalist reforms that sought to modernize the country. In 1928, 5 years after the advent of the Republic and 4 years after the abolishing of Caliphate, the state implemented a reform of the alphabet, giving up Arabic script in favor of the Latin alphabet, which purged the Turkish languages of its Ottoman vocabulary and syntax, introducing newly coined words from Turkish language. Conclusion. Pamuk's novels can be described as post-secular, post-Orientalist fiction that traces the transformation of Homo secularis into a liberated figure of the secular and sacred. The success of Pamuk as a novelist lies in the skill with which he explores the metaphysical echoes of certain sadness. Pamuk's novels can be described as post-secular, post-Orientalist fiction that traces the transformation of Homo secularis into a liberated figure of the secular and the sacred. Pamuk's socio-political culture is clearly visible in the novels under study. Thank you. Thank you, sir. Sir, over to you, Satendra. हाँ, केरकेटा जी, Yes, sir. अच्छा पेपर है और मैं तो ये पामुक को पढ़ा हूँ बहुत, वो हिंदी में भी है और Okay. हाँ, और उनके कार्य करने का शैली आपने जैसे कि बताया वो मुझे बहुत पसंद है। और जैसा कि आपने पोस्ट सेक्युलर और पोस्ट ओरिएंटलिस्ट बताया, ये भी मतलब ये क्वाइन अच्छा लगा मुझे, ये जो आपने शब्द क्वाइन किया तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया है, वर्ड आपने चुना है। और रही बात जो संस्कृति की बात, जो मेलैंकोलिया की बात कर रहे हैं, जो दुख के बारे में बात कर रहे हैं, वही चीज अमेरिका में अभी मतलब जो ब्लैक लोग हैं उस पर भी काफी सारे शोध हुए हैं। और वो लोग जब वहां गए अफ्रीका से अमेरिका में, वहाँ रेसिज्म का प्रभाव हम सब जानते हैं, तो उन लोगों में एक ये खालीपन, अस्मिता का संकट, आइडेंटिटी प्रॉब्लम है कि वो अमेरिकी नहीं माने जाते हैं, वो खुद को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रूट को नहीं जानते हैं। वो मेस्टिसोज और कई तरह के क्रियोल्स, इस तरह की जातियां बन गई हैं और ये पूरी दुनिया में मिलता है। जैसे माराडोना को आप जानते होंगे या फिर आप क्रिकेट में हैंसी क्रोनियो को अफ्रीका में देखते होंगे। ये लोग वो बच्चे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट के क्रॉस से बने हैं। मेस्टिसोज एंड क्रियोल जो है वो एक गाली है, हाँ, वहाँ के लिए। तो इन लोगों के पास ना बहुत मतलब एक अस्मिता की हम कौन है, ये जो संकट है, आपने उस चीज को उठाया, जो मेटाफिजिकल सैडनेस कह रहे हैं ना, ये वही है कि हम कौन है, कि हम लोग तो बहुत अच्छे से ये वो लोग समझ सकते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि हम ये हैं, यहाँ तक कि हमारे बाप दादा, लेकिन उनमें एक संकट है। और वो लोग जो जब पढ़ लेते हैं और उनमें आत्महत्या का दर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के कई शोध हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह के पेपर में कई शोध हैं अमेरिका में ब्लैक लोगों के आत्महत्या का, इस तरह के संकट से जो उन लोगों में मतलब जो एक संकट पैदा हो रहा है, वो मुझे लगता है कि आपको फायदा मिलेगा। और ओरहान पामुक को जोड़ते हुए आप बहुत बढ़िया पेपर तैयार कर सकते हैं, ये मैं एक मतलब सलाह दे रहा हूँ आपको। शुक्रिया, बढ़िया पेपर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, Keerketa, sir. Now I would like to request to Mr. Khurshid Ahmed, if he is present here, kindly present your original research paper to us. फिर कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं खुर्शीद जी के साथ, वो बार बार लेफ्ट हो रहे हैं। जब तक वो दोबारा ज्वाइन करें, सर इसी एक बात से हमारा ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी कि हम कौन थे, जो कि हमारे कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी ने बताया। उन्होंने 24 के रातों की बात की और काफी बात उन्होंने की कि हमारी क्या पहचान, क्या सांस्कृतिक यात्रा रही है, किस प्रकार से संचार की परंपराओं ने हमें यहाँ तक लाया। यहाँ पे हमने विवेक नेमा जी को भी देखा, जो कि
बात कर रहे थे राहुल सांकृत्यायन की उस परिपाटी की जो कि अथातो गोमंकड़ जिज्ञासा एक लेखन से शुरू हुई और आज हम सिर्फ फोटो खींच के चले आते हैं। तो इस तरह से काफी चीजें हैं जो कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और संचार की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे चर्चा की जा रही है। मैं लगातार टच में हूँ टेक्निकल टीम के। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम खुर्शीद अहमद जी को जल्दी जोड़ सकें। पीपीटी उनकी हमारे साथ है और साथ ही मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो भी आज का बेस्ट पेपर हो उस पे आप अपनी टिप्पणी एवं उसकी उद्घोषणा अवश्य करें। तो वो मैं सुन लेता हूँ एक बार। जी हाँ, हम लोग प्रतीक्षारत हैं अभी तकनीकी कारणों के कारण। हाँ, धन्यवाद। तो ये आखिरी पेपर है क्या? जी, खुर्शीद अहमद जी का आखिरी पेपर। आखिरी पेपर है। जी Sir, I think Khurshid Ahmed is not able to join. उनके यहाँ पे मैम कोई सर कोई नेटवर्क इशू आ रहा है because he's in Kashmir, so possibly that's why he's not able to join. Yeah. ये कश्मीर से दूसरा पेपर होता है हमारे बीच जो कि आज किसी कारणों से ये नहीं प्रेजेंट हो पाया है। तो हमारे पास But we have the PPT. If you would like to see the presentation. हाँ, ये बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि लेकिन वो पीपीटी बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए। आपकी मर्जी से चलेगा सर। तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो आप आगे कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
Next. 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 And next. Next. Next.
Next. Next. सर मुझे ये पेपर सबसे अच्छा लग रहा है और इसके प्रेजेंटर नहीं है। ऐसे सभी लोगों का मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने मतलब जो पेपर लिखने का जो पूरा मतलब साइंटिफिक अप्रोच है, वो जैसे उन्होंने सारा बिब्लियोग्राफी भी लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी लिखा है, और मतलब जो फॉर्मेट है उसका पालन किया है, और एक मतलब रेफरेंस भी, साइटेशन बीच में नहीं है लेकिन शुरू में ही इन्होंने कर दिया है, और मुझे लग रहा था कि ये बीच में ही छूट जाएगा, बस एक मतलब कॉपी पेस्ट करके रह जाएगा, लेकिन इन्होंने सारी चीजों को अगर कॉपी पेस्ट भी किया है तो भी उससे जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस भी है इस केस में, तो ये मुझे ठीक लगा और मुझे लगता है कि द बेस्ट पेपर होगा। ऐसे कंटेंट के लेवल पे सभी पेपर अच्छे हैं, तो उसमें कहीं से मैं मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि फर्स्ट है सेकंड है, सब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी कमी है। हाँ, तो रिसर्च ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं आप, तो इस तरह से हम किस पेपर को एक कह सकते हैं कि बेस्ट पेपर? मैं जो अभी खुर्शीद आलम का जो पेपर है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, और मैं इसके साथ एक नारायण मूर्ति IIT में एक बार आए थे बोलने के लिए दिल्ली में, तो उन्होंने प्लेसमेंट के लिए वो आए थे, तो उन्होंने IITian से ये कहा कि जिन लोगों को हम नहीं चुन पा रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो नाकाबिल हैं, वैसे ही मैं कहता हूँ कि इसमें पेपर ऐसा नहीं है कोई खराब है, लेकिन यहाँ पे चयन करना है तो एक फॉर्मेट को मैं तरजीह दे रहा हूँ, और हालांकि सबके पेपर ठीक हैं, अच्छे लगे मुझे, पहला पेपर भी अच्छा था और विवेक का भी पेपर इंटरेस्टिंग है, मतलब दिलचस्प तो सब है, पामुक पर मैंने वो भी काफी दिलचस्प लगा, तो चयन करना मुश्किल होता है, लेकिन इस पेपर को मैं पहला दर्जा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही। एक तरह से जो भारतीय शोध परंपरा की बात हमने प्रथम आपके वक्ता के द्वारा की गई, उस शोध परंपरा का निर्वहन करते हुए अगर हम अकादमिक सत्र में देखें तो इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में असल रूप से देखा जाए तो शोध की सभी जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करते हुए इस पेपर को ही आप बेस्ट पेपर का अवार्ड दे रहे हैं। तो ये खुर्शीद आलम जी के इस पत्र को बेस्ट पेपर का अवार्ड इस सत्र में दिया जाता है। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ये त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तीनों दिवस यहाँ पे आज खत्म हो रहे हैं और आज ये तीसरे दिवस का आखिरी सत्र भी समाप्त होता है। तो इस तकनीकी सत्र की समाप्ति पर वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं हमारे साथ उपस्थित हैं मानविकी एवं उदार कला संकाय के इतिहास विभाग से डॉक्टर सावित्री परिहार जी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार सर। इस सत्र में जिन शोधार्थियों ने प्रपत्र वाचन दिया उनको मैं बधाई देती हूँ। बेस्ट प्रवाचन को भी बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।
मैं प्रोफेसर विप्लव ले चौधरी व डॉक्टर सत्यम सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान से हमें व हमारे सत्र को समृद्ध किया। अखिलेश त्रिपाठी जी को भी मैं कुशल संचालन के लिए हार्दिक आभार देती हूँ। मैं मानविकी व उदार कला विभाग की अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष व अपने सभी सहयोगी व प्राध्यापकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको। इसके साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ, हम सभी अब लीव करना चाहेंगे। सर, आपकी अनुमति? जी, मेरी अनुमति है और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सर संतोष चौबे को भी मैं मतलब शुक्रिया कहना चाहूँगा, और लोग जो भी हमारे अग्रज हैं उन लोगों का भी धन्यवाद, यूनिवर्सिटी का धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार जी, अमृत महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं।